This storage. conference We will just now be started recorded. to understand what the storage concept. So just go through the content, and if you have any question, please let me know. Any question, guys? Any doubt? In my side, no, sir. Fine. So let's say start another topic means related to the storage. आगे हम बढ़ते हैं. We discussed about LRS, GRS, about the blob types. So we discussed about the blob type, blob, page blob, and page append blob. पब्लिक स्टोरेज एंड प्राइवेट स्टोरेज में डिफरेंस भी हमने देख लिया था. नाउ वी नीड टू मूव आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट टॉपिक. आई थिंक वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ स्टोरेज अकाउंट एज वेल. हमने एक स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट किया था, राइट? Yes, sir. Okay, let me create it again and try to understand about the uh, step that we need to use to manage our storage services. For the storage, we just need to open our Azure portal, go to the storage account. I'm going to create a one storage. One more storage means new storage to understand about each and everything. Click create. Provide the details related to our basic information like as a subscription type and about the container name. This is the resource group. It's a type of container. Provide the information about the storage account. So storage account must be unique. Training 1988 storage. This is the storage name. East US is our location. Standard and premium we have already discussed. Next. We want to make it public क्योंकि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड. Next and create.
Fine. So we successfully created a one storage account, and you know that storage के part के अंदर हम बात करें तो we are able to find four different types of storage: container, file share, queues and table. ये चार अलग अलग storage option मिलेंगे हमें data store के अंदर. So our responsibility to understand about the container. और container के अंदर हम multiple blocks तैयार कर सकते हैं like we discussed before. So in single container we are able to find three different types of blob जिसमें हम अपना data खुद का upload कर सकते हैं. Page blob which is contain the VHD file, जो भी virtual machine तैयार करते हैं उसकी VHD file इसमें आती है. Append blob responsible to contain read only file और इसके अंदर logs की details रहती है. So हम यहाँ पे बात करने वाले हैं blob के बारे में. So we just need to create a container. टेस्टिंग के नाम से हम एक कंटेनर बना रहे हैं एंड वी वांट टू मेक इट anonymous, means anyone can access it. Click create. Testing is our container. Open the container and upload the data from your on premises machine. Click upload. Select the files detail. जो भी फाइल हमें अपलोड करनी है we just need to select from our desktop, from any drive. We just need to provide the details related to the file जो हम अपलोड करना चाहते हैं. I'm going to upload one JPG file. We successfully uploaded and we are able to access this file from anywhere. Open the file and copy the URL and open in another browser. We are able to access our data जो हमने upload किया था. So this is the way to use the blob. But question ये है कि अगर हमें इसको world wide access करना है, world wide in the sense कि we are using our portal and portal के through हम इसको upload कर पा रहे हैं या फिर download कर पा रहे हैं. If you want to provide the access of your storage to outside the system, means जो बाहर system लगे हैं, जो clients हैं, उनको हम कैसे access provide करेंगे? So we will proceed to understand about how we can access it. हेलो हेलो सर। Hello. हाँ जी. सर मैं ये ऐसे अभी हमने कंटेनर क्रिएट किया ना सर, हाँ जी. और कंटेनर्स क्रिएट किया तो वहां से हम डायरेक्ट अपने वहां से जो अभी डाटा अपलोड किए हैं आप, जो भी इमेज फाइल, हाँ. तो वो हम्म, डायरेक्ट उस पर क्लिक करने पर मेरे जो मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप से डाटा अपलोड करना चाहता हूँ, तो हाँ. वो डायरेक्ट डायरेक्ट हो जा रहा है, मतलब कुछ उसको किसी मीडिएटर नहीं जरूरत है। नहीं नहीं, देखो अगर आपके पास पोर्टल का एक्सेस है तो किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो पोर्टल ओके। ओपन है ना. ट्रेनिंग 1988 जी। इज आवर स्टोरेज. ओके। We are able to हाँ। access our storage with the help of portal ना. This is my portal. जी जी जी। तो पोर्टल पे कोई जरूरत नहीं किसी मीडिएटर की. लेकिन हाँ, अगर मैं आपका अपना स्टोरेज आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको मीडिएटर इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक। क्योंकि ओके सर। रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो डेफिनेटली कोई भी अपना यूजर नेम पासवर्ड कभी नहीं शेयर करेगा किसी के साथ, राइट? तो वी शुड राइट नीड टू सर। यूज अ टूल्स. तो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने एज्यूर पोर्टल के ऊपर एक स्टोरेज बनाया, मल्टीपल क्लाइंट जो हैं वो अपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं, लाइक एज ये क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, मल्टीपल क्लाइंट है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से. तो ये अपना डेटा कैसे अपलोड करेंगे?
These all are the local system and our responsibility to upload the data. इन सब क्लाइंट की जो लोकेशन है वो अलग है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, Azure Storage Explorer. बाय यूजिंग द Azure Storage Explorer हम किसी भी लोकेशन से डेटा को अपलोड कर सकते हैं. सो जिस भी क्लाइंट को डेटा अपलोड करना है किसी भी लोकेशन में, वो क्या करेगा, अपने सिस्टम पे पहला स्टेप, डाउनलोड Azure Storage Explorer and install. So I'm just going to connect my Windows machine और ये स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा को किसी ऑन प्रेमाइसेस मशीन से अपलोड कर सकते हैं. दिस इज माय ऑन प्रेमाइसेस मशीन. विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑन प्रेमाइसेस पे हमने इंस्टॉल कर रखा है. इसको एज ए क्लाइंट ट्रीट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरर टूल वी विल अपलोड आवर डेटा ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड पे कैसे डेटा अपलोड करते हैं, इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू हम समझने वाले हैं. स्टोरेज अकाउंट हमने पोर्टल पे बना रखा है, बट वी विल एक्सेस विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरर टूल. You need to type download Azure Storage Explorer. डाउनलोड द टूल फॉर विंडोज, मैक, लिनक्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप ये टूल इंस्टॉल कर सकते हो. जस्ट नीड टू डाउनलोड. 91 MB ऑफ साइज. इस पर्टिकुलर टूल की जो कैपेसिटी है 91 MB के आसपास है. एंड इंस्टॉल इट. So in my system, I have already installed, so I'm just going to repair it. Done. We successfully uploaded. ओके, सो वी सक्सेसफुली इंस्टॉल इट ऑन प्रोमाइसेस और इस टूल के थ्रू हम अपने ऑन प्रोमाइसेस का डेटा अपलोड करेंगे. बहुत ही बेसिक सा तरीका यूज करना है. यू कैन आल्सो इंस्टॉल ऑन योर बेस मशीन.
आप इसको अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। This is our storage explorer look like. Now we need to connect our storage explorer with Azure storage account जो हमने तैयार किया है, तो उससे कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। दिस इज आवर स्टोरेज अकाउंट जो हमने बनाया ट्रेनिंग 1988 स्टोरेज के नाम से, और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट दिखाई पड़ रहा है। राइट क्लिक एंड वी हैव अ फर्स्ट ऑप्शन कनेक्ट टू द स्टोरेज। मल्टीपल ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हम नहीं यूज करेंगे बिकॉज इस केस में सब्सक्रिप्शन आईडी देनी पड़ेगी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। वी डोंट नीड टू शेयर विद एनीवन। सेकंड ऑप्शन Azure storage account or services, ब्लॉब, फाइल, क्यूज, टेबल। आप अलग अलग भी सेपरेट तरीके से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे 3 अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर और अकाउंट नेम एंड की। तो हम अकाउंट नेम एंड की के थ्रू इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, टाइप द डिस्प्ले नेम। सो आई एम गोइंग टू यूज सेम डिस्प्ले नेम जो हमने अकाउंट का नेम रखा है, कॉपी, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अकाउंट नेम इज आल्सो सेम। यहाँ पे बात कर रहा है कीज की, तो की कौन सी प्रोवाइड करेंगे, स्टोरेज अकाउंट में आओ आप, और यहीं पे एक ऑप्शन है एक्सेस कीज का। एक्सेस कीज पे क्लिक करेंगे, सो कीज पे क्लिक करना है हमें, एंड कॉपी द कीज बैक टू द अकाउंट की, और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। दैट्स इट। ये बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना है। क्लिक नेक्स्ट एंड कनेक्ट। जो भी स्टोरेज हमने जो भी स्टोरेज अकाउंट के अंदर ऑप्शंस हैं, ब्लॉब है, फाइल शेयर है, क्यूज है, टेबल है, इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने लगी है। जस्ट नीड टू चेक। ब्लॉब कंटेनर में अभी थोड़ी देर पहले हमने टेस्टिंग बनाया था, टेस्टिंग के अंदर एक फाइल रखी थी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप की फाइल हमने अपलोड की थी। एक नया ब्लॉब बनाते हैं, नया कंटेनर बनाते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं लोकल, और ये लोकल आपके एज्योर पोर्टल पे भी इमीडिएटली तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लोकल ये क्रिएट हो गया। एक्सेस की बात करें, अपलोड द डेटा, फाइल या फोल्डर जो भी अपलोड करना चाहते हैं, एक फाइल या फोल्डर हम अपलोड करके देख लेते हैं लोकल मशीन से। सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप एंड अपलोड। Now, one more file we uploaded with the help of Azure Storage Explorer tool. तो रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देंगे, स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो भी जो डेटा आपको अपलोड करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से या डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से, जो क्लाइंट ऑन प्रोमाइसेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें बोलना पड़ेगा यू शुड इंस्टॉल अ एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल। लोकल मशीन पे आप इंस्टॉल करो, और लोकल मशीन पे इंस्टॉल करने के बाद हम इसको कनेक्ट करा लेंगे एज़्योर अकाउंट से। सो ये अपने पास यूज हो गया स्टोरेज एक्सप्लोरर का। प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो। सर हाँ जी, हेलो, ये आई तो कैन हियर यू। हमारे आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसमें आर्ट प्रोवाइस में क्या होता है कि मान लीजिए कई क्लाइंट है हमारे, मतलब कई यूजर हैं, 10 या 15, हाँ। तो हम्म। उनको हम जो अभी हम जो ये थर्ड जो जो मीडिएटर इंस्टॉल करके कनेक्ट करवाए हैं,
ठीक है। तो मान लीजिए अलग अलग यूजर अपना अलग अलग डाटा रखेगा, तो एक यूजर उन सारे डेटा को भी देख सकता है ना। नहीं, अगर आप उसमें परमिशन लगाना चाहते हैं, परमिशन जो है एक्टिव डायरेक्टरी से लगेगी। अगर आप परमिशन लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो वो एडी से ही वो मतलब परमिशन लगा, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से केवल अपलोड डाउनलोड होगा, मीन्स पोर्टल पे आप अपना अपना फोल्डर तैयार कर सकते हो कि हम अपना फोल्डर इसी पे रखेंगे और ओके। अपना डेटा इस पर्टिकुलर इसमें रखेंगे, और जो सिक्योरिटी की बात है वो आपका एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करेगा। ओके सर, यहाँ से सर दोनों अपलोड भी कर सकते हैं और डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, आप इसमें से डाउनलोड करना, अपलोड करना, शेयर करना, सारी सर्विसेज यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। मीन्स दैट्स बिना इट। इस बिना एजो पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड के हम अपने डेटा को अपलोड डाउनलोड कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ से। जी सर, राइट। वो हमारे उसका यूजर नेम जो जो भी हम डेटा स्टोर बनाए हैं, यूजर मतलब वो नेम और उसकी को शेयर करना पड़ेगा तो मतलब यूजर को। हाँ जी, बिल्कुल, यूजर अकाउंट और कीज, दो चीजें हमें शेयर जी करनी पड़ेगी। जी सर, जी। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। सर, सर, अब फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल मशीन का सारा डेटा स्टोर हो रहा है एक डेटा स्टोर में। वो हाँ टोटल हाँ डेटा स्टोर को हम क्लाउड में माइग्रेट कर दिए, मींस इसमें लगा दिए ऐसा। After हम्म then, we have that running virtual machine actually. That data also stored in this path, sir. After migration of general to cloud, that virtual machine data also stored in this path, sir. Same path. करेक्ट। स्टोर हो रहा था सर, कंटिन्यूस स्टोर हो जाता उसमें। देखो, एक्चुअली जो आप सिनेरियो बता रहे हैं ना, वो उसके लिए हमें सिंक्रनाइजेशन टूल आता है एक, एजूर फाइल सिंक के नाम से। उस सिंक्रनाइजेशन टूल को लोकल में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम लाइव सिंक्रनाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स जो लोकल में डेटा रखेगा वो अपने आप जो है सिंक्रनाइज हो जाएगा क्लाउड पे। ओके। ये एजूर साइज फाइल। ये फाइल, या सर। अब ये है ना सर, तुम ये लोकल का को बनाए ना सर, नया डेटा हाँ, स्टोर ये का, वो हम वो साइज को भी एक्सपेंड कर सके सर हम। अब फॉर अपने एग्जांपल ये अकॉर्डिंग 100 GB है। हाँ बिल्कुल, अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज कर पाएंगे हम। ओके। ओके सर, थैंक यू। जल्द। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा अभी कि हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंट नेम और कीज के थ्रू अपने स्टोरेज को जोड़ पा रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, अगर आप कनेक्ट पे फिर से क्लिक करो और स्टोरेज अकाउंट सर्विस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो एक SAS URL है दूसरा नंबर पे। SAS URL जिसको बोला जाता है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URL, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से आप अपने स्टोरेज में सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सेग्रीगेशन कैसे, कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम केवल फाइल शेयर देना चाहते हैं, क्यूज देना चाहते हैं, टेबल देना चाहते हैं, या केवल ब्लॉब स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो SAS के जरिए, SAS URL के जरिए हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो SAS का मतलब ये है कि और सिक्योरिटी के साथ हम अपने स्टोरेज को शेयर करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस के क्लाइंट के साथ। तो चलिए एक स्टेप और देख लेते हैं। कनेक्ट पे क्लिक किया, स्टोरेज अकाउंट सर्विसेज पे क्लिक किया, SAS URL पे सेलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट करेंगे। नेम एंड SAS URL मांग रहा है, ये दोनों चीजें कहाँ पे मिलेगी, हमारे पोर्टल पे। नेम हमें पता है, स्टोरेज अकाउंट 1988, ट्रेनिंग 1988 स्टोरेज। यहाँ पे आप कोई सा भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं 2। और SAS सिग्नेचर की बात करें, सर्विस URL की बात करें, तो इस बार हम जाएंगे SAS में, यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का, कि इसके जस्ट नीचे। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे सिक्योरिटी के लिए। 1 2 3 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बट हम इसमें से केवल दो चीजें शेयर करना चाहते हैं, ब्लॉब और फाइल शेयर।
अभी हमने चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बट आगे वाले ऑप्शन में हम केवल 2 ऑप्शन देना चाहते हैं, ब्लॉब एंड फाइल शेयर की। चेक मार्क करेंगे सभी चीजों को, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रीड, राइट, डिलीट, लिस्ट, ऐड, क्रिएट, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हम केवल रीड की परमिशन देंगे, डिलीट की परमिशन नहीं देंगे, लिस्ट की परमिशन नहीं देंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें चेक मार्क कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। लास्ट आता है कीज की, तो आप जनरेट SAS URL पे क्लिक कर दो। ये आपको कीज दे देगा, SAS URL की कीज दे देगा। आप ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस में से कोई सा भी एक कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद बैक, और इस URL पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप पेस्ट कर दोगे पूरा का पूरा URL। नेक्स्ट करोगे, कनेक्ट करा दोगे। अब आप देखो यहाँ पे ट्रेनिंग 1988 स्टोरेज की से जुड़ा है तो चारों चीजें मिल रही हैं। SAS से जुड़ा है तो केवल 2 चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में बता भी देगा कि आप कौन सा मेथड यूज किए हो, कीज का इस्तेमाल किए हैं या SAS का इस्तेमाल किया है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखने लगे हैं। ब्लॉक कंटेनर फाइल शेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही चीजें अलाउ कर रखी है, 2 चीजें हमने ब्लॉक कर रखी है। तो रियल इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज भेजनी है एजर स्टोरेज अकाउंट से लोकल में, तो आप SAS कीज का इस्तेमाल करेंगे, SAS सिग्नेचर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, सर sir. सर ये SS का यूज करके तो भी हम इसमें सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा यूजर है तो उसको हम चाहते हैं केवल रीड देना, तो वो, लेकिन वो फाइल अपलोड नहीं कर पाएगा ना सर, यहाँ से नहीं दे सकते। नहीं, देखो एक्चुअली इसमें क्या है ना कि आप जो जी कीज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कीज जो डिस्ट्रीब्यूट जी करेंगे उसके थ्रू जी कनेक्टिविटी, देखो कनेक्टिविटी के केस में क्या होगा, उसको तो सभी वो दिखाई पड़ेंगे ना, एडाप्ट जो फोल्डर आपने बनाया है, जो आपने कंटेनर बनाया है, वो सभी कंटेनर दिखने लगेंगे। जी एज्यूर एडी के जरिए आप अपने इंडिविजुअल फाइल फोल्डर को इंडिविजुअल यूजर के साथ असाइन करोगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एडी तक का, जी क्योंकि वो चीजें ओके एडीसी। सर, ओके सर बाय। चलिए, तो उम्मीद है ब्लॉब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्लॉब में कुछ और चीजें भी हमें डिस्कस करनी है। एज्योर इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सारा कुछ पता होना चाहिए एज्योर के स्टोरेज के केस में। तो अभी तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? हेलो? हेलो, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। और आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, चाहे आप पोर्टल को ओपन कर लो। यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक किया हमने, और जो भी हमने डेटा अपलोड किया उसमें देखो एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्सेस टीयर का, जिसमें हॉट दिखाई पड़ रहा है, राइट? दूसरा वाला डेटा भी देखोगे तो उसको भी हमने एक्सेस टीयर हॉट ही रखा है, बाय डिफॉल्ट है। तो अगला टॉपिक है अबाउट द एक्सेस टीयर। सो एक्सेस टीयर क्या होता है? एज्यूर स्टोरेज के ब्लॉब के केस में या फाइल शेयर के केस में, जो भी आप डेटा अपलोड करते हो ना, उनको 3 कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो एक्सेस टीयर इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट। पहला है हॉट, दूसरा है कूल, और तीसरा है आर्काइव। 3 अलग अलग स्टेप है हमारे डेटा को अपलोड करने के लिए। हॉट टीयर हो सकता है, कूल टीयर हो सकता है, और आर्काइव टीयर हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इनकी मीनिंग क्या है और किस तरीके से इनको किस पर्टिकुलर टीयर का आप इस्तेमाल करोगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हॉट टीयर की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। ये अपने पास सिस्टम है, एक 3 अलग अलग क्लाइंट हैं और तीनों अलग अलग डेटा अपलोड करना चाहते हैं।
क्लाइंट ए जो है वो 1 TB का डेटा अपलोड करना चाहता है। 1 TB का एग्जांपल लेकर चलते हैं। हॉट टेयर में अगर आप डेटा अपलोड करते हो तो इसका जो कॉस्ट पड़ेगा आपको वो कितना पड़ेगा? यू हैव टू पे $20 पर मंथ, इसका रेंट पड़ेगा आपको। और इसमें जो डाउनलोडिंग है ना वो टोटली फ्री है, कितना भी आप डाउनलोड करो, कितनी भी ब्राउज करो, वो पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप यही डेटा 1 TB का डेटा कूल टियर में बंदा अपलोड करता है तो कूल टियर में क्या मिलेगा आपको? $10 का कॉस्ट हर महीने देना पड़ेगा, मीन्स रेंट समझो आप इसको। और $10 आपको पर डाउनलोड, जितनी भी बारी डाउनलोड करोगे उसका $10 अलग से पड़ेगा। लास्ट अगर हम बात करें अपने आर्काइव की, तो आर्काइव के केस में जो टोटल कॉस्ट है $2 देनी पड़ेगी आपको हर महीने, $22 पर डाउनलोड। ये इसकी कॉस्ट हो गई 1 TB के डेटा की। अगर आप 1 TB का डेटा लोकल से अपलोड करते हो तो ये इसकी प्राइसिंग हो गई। हॉट के केस में $20 पर मंथ, डाउनलोडिंग इस ऐप फुल्ली फ्री। एंड कूल के केस में 1 TB $10 पर मंथ एंड $10 फॉर डाउनलोडिंग। आर्काइव के केस में 1 TB का डेटा $2 per month and $22 per downloading. This is the details related hot tier, cool tier and archive tier. So आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाइड करिए कि मीन्स कौन सा टियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मीन्स कैसे आप डिसाइड करोगे कि क्लाइंट का डेटा हॉट में रखना है, कूल में रखना है, आर्काइव। सर इसमें हॉट हॉट का ही लेंगे, लेकिन अगर हम क्लाइंट का डेटा जैसे वो हमेशा डाउनलोड जरूरत पड़ेगी उसको, तो फिर हम जाएंगे कूल वाले में। ओके। लेकिन हार्ट हार्ट सर वाला बेस्ट है, क्योंकि इसका डाउनलोडिंग पैसा मुझे नहीं लग रहा है, डेटा तो सब, और वो पर मंथ $20 है। लेकिन कूल वाले में सर पर डाउनलोड $10 ले रहा है ये जा। और करेक्ट। फिर वही, फिर आर्काइव में सेम वही है, पर डाउनलोड $22 ले रहा है, ये भी कॉस्टली है। तो हार्ट इज बेस्ट। अगर क्लाइंट, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको जो अपना डेटा है वो आर्काइव में रखना है? उस सर उसका साइट पे डिपेंड करेगा, उसका डेटा अगर 1 TB से नीचे है तो नहीं, तो उसमें हेलो सर सर, आई हैव हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अतुल कुछ बोल रहा है ना सर, वो कंप्लीट होने मैं नहीं पूछूंगा नहीं, सर। ना ना बोलो, कोई नहीं, पूछो। सर मैं मेरा मेरा ये आर्काइव है ना, इसमें फॉर मंथ $2 है ना, ओनली फॉर अपलोडिंग पर्पस। वो अपलोडिंग पर्पस, रेंट। या $2 अपलोडिंग पर्पस लेके डाउनलोडिंग पर्पस कूल में हम सेलेक्ट नहीं कर सके सर। अपलोड ओनली अपलोडिंग पर्पस आर्काइव लेकर डाउनलोडिंग पर्पस कूल वो हम नहीं ले सकते सर। नहीं, हार्ट है ना वो नहीं ले सकते, टोटल डाउनलोड फी है ना उसमें, ऐसा दो नहीं सेलेक्ट नहीं नहीं कर सकते सर। नहीं, तो आई एम आस्किंग कि व्हेन वी नीड टू प्रोसीड विद आर्काइव, आर्काइव का सर सिलेक्शन कब करेंगे फिर? सर आर्काइव का सिलेक्शन कब करेंगे? जब हमारा डाउनलोड का मतलब कम रिक्वायरमेंट हो, डाउनलोड कम नहीं हो, बस रिक्वायरमेंट। अपलोड कर। यस, क्योंकि डेटा मेरा केवल अपलोड होता रहे, डाउनलोड कम हो, ना के बराबर। हाँ, मतलब ऐसा डेटा जो आपको बचा के भी रखना है, राइट? एंड जी उसको फ्रीक्वेंसी में डाउनलोड भी नहीं करना, मतलब डिलीट भी नहीं करना है और सेव करके रखना है। जी। ऐसे कौन से डेटा है, कोई एग्जांपल? किस तरीके के डेटा आर्काइव में रखोगे आप? Sir, once again, you can repeat the question, sir. I can't audible that properly. Want to know about the types of data that we need to put it into the archive tier. ऐसा कौन सा डेटा है जो हम आर्काइव टियर में रखना चाहेंगे?
ये वो कुछ रिवर्ट पर्पस ऐसा टाइम पर रख जाते ना सर, कुछ एप्लीकेशंस होते ना वैसा, वो वीएम्स वैसा था ना, उसका डेटा था ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमारे डाउनलोड में आते रहते हैं, वो हमेशा डाउनलोड कोई ना कोई करता रहेगा। देखो, आर्काइव का मतलब ये है कि आपको डेटा बचा के रखना है और उसका यूज भी नहीं करना है। जैसे बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आर्काइव का, सीसीटीवी कैमरा का डेटा। करेक्ट। यस सर, और यस वो सर, ये यस भी सर। हो सकता है सर कि जो भी मतलब अकाउंट से रिलेटेड को है जो हाँ ऑलरेडी जी। यूज हो चुका है, और हमारा डाटा स्टेटमेंट। जो भी एक्सेल एक्सेल फाइल है जो अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब वो यूज हो चुके हैं लेकिन फ्यूचर में हम देखना चाहते हैं तो उसको भी ऐड रख सकते हैं उसमें। देखो, आर्काइव के केस में सीसीटीवी कैमरा का डेटा आता है और दूसरा आता है बैंक के स्टेटमेंट या बैंक के यस बिल्स। सर। यस स्टेटमेंट सर। वगैरह बंदा कोई भी नहीं देखता, मतलब उतना ज्यादा कितने लाखों करोड़ों अकाउंट्स हैं और इतने ज्यादा स्टेटमेंट बैंक को जो है जनरेट करने पड़ते हैं, और जब भी हम कभी भी कॉल करते हैं वो विद इन मिनट हमें उठाकर दे देते हैं, राइट। तो यस सर। ये जो डेटा है इनकी, ये इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, बट इनको, इनका जो यूज है बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो आई डोंट नो कि कोई डेली बेसिस पे सीसीटीवी कैमरा का सेव हुआ डेटा देखता होगा। तो वी जस्ट नीड टू पुट इट इनटू द आर्काइव। बहुत रेयर केस हो गई तो हमें वो डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज नो नीड टू यूज इट। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। यस राइट सर। हाँ। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एक्सेस टेयर। एज पर द रिक्वायरमेंट, इनमें इनका सिलेक्शन करने के पहले आपको क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि आप अपने डेटा को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ही आप प्रोसीड करोगे उसको, उसके लिए डेटा स्टोर करने के लिए। करेक्ट। यस सो सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट, कूल एंड आर्काइव। सो ये सारी चीजें हम क्लाइंट के सामने रखेंगे और पूछेंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, मीन्स हर तीसरे दिन चौथे दिन अगर आपको डेटा अपलोड डाउनलोड करना है तो आप हॉटटेयर में जाइए। अगर आप अपना डेटा 6 महीने या 1 साल में डाउनलोड करते हैं तो आप कूल में जाइए। अगर आप डेटा रख करके भूल जाना चाहते हैं, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल बाद रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यू कैन प्रोसीड विद आर्काइव, क्योंकि ये सिलेक्शन के बाद आप अपनी जो कॉस्टिंग है, जो प्राइसिंग है, उसको भी कम कर सकते हैं। करेक्ट। दिस इज यस अबाउट सर। द एक्सेस टेयर। इसको बोला जाता है एज्यूर स्टोरेज अकाउंट एक्सेस टेयर। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है ये, एक्सेस टेयर क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन कि हम एक टीवी का एग्जांपल लें, एक टीवी डेटा का एग्जांपल लें, और ये सारी चीजें हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें अगले। तो अगला है स्टोरेज अकाउंट में हम डिस्कस करना चाहते हैं एज्योर फाइल शेयर। अभी हमने कंटेनर की बात की, अब हम बात करने वाले हैं एज्योर फाइल शेयर के बारे में। सो फाइल शेयर क्या है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम आपको देते हैं फाइल शेयर के बारे में। आई होप कि यू नो अबाउट कि जब मल्टीपल मशीनें आपस में जुड़ी हैं, ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एक फोल्डर शेयर कर सकते हैं और फोल्डर को हर एक सिस्टम में मैप करा सकते हैं। सो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट द मैप नेटवर्क ड्राइव। मैप नेटवर्क ड्राइव का काम क्या होता है? ये मैप नेटवर्क ड्राइव मतलब आठ प्रोमाइस देखा जाए तो हम एक फोल्डर बनाते हैं और उस करेक्ट। फोल्डर को हम शेयर कर देते हैं अपने जो भी इंडिविजुअल हमारे जो यूजर हैं हर एक को, और विथ हेल्प ऑफ जो जो भी आईपी के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी, उनके साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। करेक्ट। जी सर। मीन्स बार बार आपको फोल्डर एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आपने मैप करा दिया, मैप ड्राइव करने के बाद वो कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एज इट इज एज्योर पोर्टल के ऊपर ये मैप ड्राइव की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने एक फोल्डर बनाया, एक फाइल शेयर बनाया, दिस इज आवर फाइल शेयर। वी हैव अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन। एज्योर पे हमने वीएम तैयार कर रखा है।
या लोकल में वीएम तैयार कर रखा है, इस ड्राइव को आप ऑन प्रोमाइसिस पे या वीएम के साथ मैप करा सकते हैं। क्लियर? तो फाइल शेयर में जो स्पेस मिलेगा वो एज्योर प्रोवाइड करेगा। 2 टीबी, 4 टीबी, 5 टीबी या 100 जीबी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट? तो ये जो स्पेस रहेगा, इस स्पेस को हम अपने वर्चुअल मशीन के साथ मैप कर देंगे और कभी भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी डेटा को अपलोड किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ड्राइव है ये आपके सिस्टम के साथ परमानेंट जुड़ जाएगी। क्लियर? जी सर। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल जरूरी है। तो ये स्टोरेज अकाउंट हमने तैयार कर रखा है पहले से ही। स्टोरेज अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी नीड टू क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन। हम इसमें एक वर्चुअल मशीन जरूर बनाएंगे। तो एक वीएम बना देते हैं ताकि हम देख सके प्रैक्टिकल। सर्वर 2012 की इमेज ले लेते हैं। इसमें सर जो हम वीएम बनाएंगे वो सेमी रिसोर्स ग्रुप में रहेगा ना, जो रिसोर्स ग्रुप में हमने स्टोरेज बना रखा है जो नहीं नहीं, कंटेनर। नो, इट्स नॉट नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है, आप कभी कहीं पे भी बना लो, वो आपका काम करेगा। Once our virtual machine is ready to use, we will configure the Azure File String service, Azure File Share service. चलो, our virtual machine is ready to use. हमने यहाँ पे VM तैयार कर लिया। Now, try to access the virtual machine's RDP. VM को कनेक्ट करा लेते हैं रिमोट के थ्रू। पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं और MSTSC के थ्रू इसको कनेक्ट करा लेते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वर्चुअल मशीन पे बनाते समय, वो आप यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे।
चलो, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ आरडीपी। और यहाँ पे अगर हम सिस्टम की बात करें तो ओपन माई कंप्यूटर और चेक करते हैं। यहाँ पे कोई भी ड्राइव मैप नेटवर्क ड्राइव यहाँ पे नहीं दिख रही है। बैक टू द एज्योर पोर्टल, ओपन स्टोरेज, और यहाँ पे आप फाइल शेयर क्रिएट करेंगे। क्लिक फाइल शेयर, टाइप द नेम ऑफ फाइल शेयर जो भी रखना चाहते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ शेयर। एक्सेस टियर में ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइजेशन, हॉट कूल दो ऑप्शन है, तो ट्रांजैक्शन हम यूज करते हैं। क्लिक क्रिएट। इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 TB की है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द साइज। राइट 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट कोटा पे जाएंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 25 GB, 25 gig स्पेस। क्लिक ओके। We created a successfully our file share service back to the our virtual machine। और यहीं पे हमने एक एक्सप्लोरर बनाया था। सी, इसको पेज को रिफ्रेश करो, जो आपने फाइल शेयर बनाया है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फाइल शेयर आ गया यहाँ पे, और फाइल शेयर में हमने शेयर बनाया था अभी जस्ट। सेलेक्ट योर फाइल शेयर, और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कनेक्ट का। कनेक्ट पे क्लिक करो। इस पूरे URL को कॉपी कर लो, जो ये पेज दिखाई पड़ रहा है, इसको करो कॉपी, कंट्रोल C, वर्चुअल मशीन पे आ जाओ जो आपने कनेक्ट किया है। ओपन CMD, कंट्रोल V, ठीक है, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये जो ड्राइव लेटर का ऑप्शन है ना, इस ड्राइव लेटर की जगह पे आपको ड्राइव लेटर नाम देना पड़ेगा। ड्राइव लेटर में कोई से भी नाम दे दो, लाइक हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया H कोलन और यस, इंटर। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और आप देखो यहाँ पे VM में एक ड्राइव बन के आ गई है। आप यहाँ पे जो भी डेटा अपलोड करोगे ये परमानेंट रहेगा। आप इसमें जो भी फाइल बनाओगे, फोल्डर बनाओगे, उस फाइल और फोल्डर की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से आपके एजो पोर्टल पे मिलती रहेगी। दिस इज टेस्ट फाइल। एजूर पे जाओ, आप पेज को रिफ्रेश करो, यहाँ पे चेक करो, आपका डेटा यहाँ पे इमीडिएट हाईलाइट हो जाएगा टेस्ट। और इसके अंदर जो आपने डेटा बनाया होगा वो डेटा भी आना चाहिए। दिस इज आवर ड्राफ्ट। क्लियर? तो एक VM के साथ नहीं, आप मल्टीपल जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं, जितने भी VMs आपने तैयार कर रखे हैं, सभी वर्चुअल मशीन्स में आप इसको अपलोड कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक हमने देखा कंटेनर की बात, और दूसरा हमने चेक किया क्या, फाइल से। फाइल। कंटेनर क्या करता है? कंटेनर जो है ब्लॉब है। एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल के थ्रू हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जो फाइल शेयर है, फाइल शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम अपने VMs के साथ इसको मैप करा करके डेटा का एक्सेस करते हैं। क्लियर? Yes, sir. दोनों में कोई क्वेश्चन अभी, फाइल शेयर और कंटेनर में? Yes, sir. चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लें, 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट करें फिर। ओके सर।
This conference will now be recorded. हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? यस सर। चलो, इसमें एक टॉपिक और है। इसमें फाइल शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी डेटा हम रखना चाहते हैं वो डेटा रहेगा, वर्चुअल मशीन्स की फाइल के लिए अलग रहेगा। इसमें एक ऑप्शन और हमें देखना है, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन इन द सेंस सर, जो भी जैसे रेप्लिकेशन मतलब एक दूसरे को वो डेटा क्या कहते हैं उसको ओवरराइट हो ओवरराइट? नहीं कर सकते ना, ओवरराइट नहीं। ये ओवरराइट इज अ सेपरेट पार्ट ना, ओवरराइट तो अलग है। मतलब उसमें अपडेटेड होते रहे एक दूसरे से। हम्म। जैसे मैंने कोई फाइल क्रिएट किया, उसमें कुछ एडिट किया, तो जो फाइल जितने लोगों को मैंने वो शेयर किया है, तो एडिट करने के बाद फिर से वो रेप्लिकेट हो जाए, मतलब क्या कर सकते हैं उसको, सर एक्सप्लेन करिए। रेप्लिकेशन का मतलब है अनदर कॉपी। मेन जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें एक दूसरी कॉपी तैयार कर देगा। यस सर। जो ओरिजिनल कॉपी आप अपलोड करोगे ना, सेम कॉपी दूसरे मशीन में वो क्रिएट कर देगा। राइट राइट। जिससे इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कभी कोई इश्यूज आता है, तो वो क्या करेगा, उसमें से जो अवेलेबल कॉपी है उसमें वो मैनेज कर लेगा। Like anti-affinity rule, sir. एंटी तो अलग का पार्ट हो गया ना, फिर VMware का ही। लाइक वैसा होता है ना सर, उसमें भी एक वर्चुअल मशीन फेल हो गया तो ऑटोमेटिक से रिप्लिकेट हो जाता ना ऐसा। करेक्ट। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं ना, ये रेप्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मान लीजिए अपने पास दो स्टोरेज अकाउंट आपने बनाया, ठीक है। दिस इज स्टोरेज अकाउंट 1 और ये दूसरा स्टोरेज अकाउंट आपने तैयार किया, स्टोरेज ए एंड स्टोरेज बी। स्टोरेज ए के केस में आपने एक डेटा रख रखा है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। रेप्लिकेशन का मतलब है सेम डेटा आपका दूसरे स्टोरेज अकाउंट में इमीडिएट कॉपी हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। जो भी डेटा यहाँ पे क्लाइंट अपलोड करेगा ना, जो जितने भी डेटा को अपलोड करेगा वो इमीडिएट रेप्लिकेट होते रहेंगे। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्टोरेज अकाउंट में कोई दिक्कत आ जाती है या डेटा में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्लाइंट क्या करेगा, इमीडिएटली दूसरी लोकेशन से अपने डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। यस सर। तो एक ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है एप्लीकेशन सर्विसेज। उसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे स्टोरेज के, वो है एज्योर फाइल सिंक, जिसमें हम लोकल मशीन के स्टोरेज को सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर पोर्टल के स्टोरेज से। इसके लिए हमने एक स्टोरेज अकाउंट पहले से बना रखा है। द स्टोरेज अकाउंट नेम इज ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 स्टोरेज। एक स्टोरेज अकाउंट और तैयार कर लेते हैं किसी भी लोकेशन में, इट्स नॉट मैंडेटरी। स्टोरेज पे गए, यहाँ पे हम एक स्टोरेज अकाउंट तैयार कर लेते हैं, क्रिएट। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं स्टोरेज क्लास 1988, ठीक है। नेक्स्ट,
हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर जो स्टोरेज होगा मस्ट बी अ जियो रेडिडेंट स्टोरेज। अगर एलआरएस रहेगा तो एज वी डिस्कस्ड एलआरएस के केस में ये हमें ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। एलआरएस के केस में वी आर अनेबल टू क्रिएट अवर स्टोरेज अकाउंट रेप्लिकेशन सर्विसेज। एलआरएस के केस में रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगेन और क्रिएट कर देते हैं। मैं ये पूछ रहा था सर, इस जो सारे जैसे हम अभी स्टोरेज ये ट्रेनिंग से नाम सुनाए थे, अभी दूसरा बनाए थे, ये सेमी रिसोर्स ग्रुप में होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। स्टोरेज अकाउंट किसी भी लोकेशन में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लो, लोकेशन है क्या कहते हैं, रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप, ग्रुप सर। रिसोर्स, हाँ रिसोर्स ग्रुप भी अलग रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाएगा सर उसके लिए कम्युनिकेट, फिर, या कुछ नहीं नहीं नहीं, ये रीजनल काम करता है, मींस किसी भी लोकेशन में रहेगा तो आप क्रिएट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ना स्टोरेज अकाउंट इज रेडी टू यूज। दो स्टोरेज अकाउंट हमने तैयार कर दिया है एंड हम इन दोनों स्टोरेज में एक एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं या कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टोरेज जो पहले बनाया था। इसके अंदर वैसे हमने नीड टू क्लिक स्टोरेज क्लास 1988, वेट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टोरेज जो हमने पहले बनाया था ट्रेनिंग 1988 के नाम से। ओपन द कंटेनर्स और in the container we need to create a one container with name of source। क्रिएट, और दूसरे स्टोरेज अकाउंट में हम एक स्टोरेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डेस्टिनेशन। दोनों स्टोरेज में, दोनों कंटेनर में कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल है। अब देखो ये सोर्स वाला भी ब्लैंक है और डेस्टिनेशन का भी स्पेस ब्लैंक है। ओपन स्टोरेज अकाउंट, और इस स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, क्रिएट एप्लीकेशन रूल्स, सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन स्टोरेज। तो डेस्टिनेशन स्टोरेज हमारा था स्टोरेज क्लास 1988।
नेक्स्ट सोर्स क्या है? सोर्स के केस में हमने सेलेक्ट किया सोर्स, स्पेलिंग मिस्टेक। सेलेक्ट डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर दिया जो भी हमने स्टैब्लिश कर रखा था। चेंज पे क्लिक करो और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एवरीथिंग, ओनली न्यू ऑब्जेक्ट एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सब कुछ रेप्लिकेट करना चाहते हैं, जो भी डेटा रखेंगे उसको सेव कर दो आप एवरीथिंग करके एंड क्लिक क्रिएट। रेप्लिकेशन तैयार होने के जस्ट बाद अब आप आ जाओ किसी भी लोकेशन पे, लाइक सोर्स पे हम चल देते हैं। दिस इज अवर सोर्स स्टोरेज। यहाँ को ओपन करो आप कंटेनर, ओपन सोर्स एंड क्रिएट और अपलोड डेटा। हम यहाँ से कुछ डेटा अपलोड कर देते हैं, अभी ब्लैंक है। ऑन प्रोमाइसेस से हम डेटा अपलोड कर देते हैं 2-3 फाइलें, ताकि हमें समझ में आ जाए। ये 2-3 फाइलें, 4 फाइलें हमने अपलोड कर दी। अब आप देखोगे जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो ये आपका डेटा डेस्टिनेशन में भी दिखने लगेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा 30 to 40 सेकेंड्स तक का, और आपका डेटा यहाँ पे भी ऑटोमेटिक रेप्लिकेट करना चाहिए। सर एक बार आप पेज रिफ्रेश करते तो शायद। हाँ, पूरा पेज रिफ्रेश कर। यहाँ पे तो अपलोड हो गया है ना। वी अपलोडेड 4 डिफरेंट फाइल्स। सोर्स में, डेस्टिनेशन में ये दिखना चाहिए हमें। ये सोर्स में तो आ गया। चलिए, यस डेस्टिनेशन में आ भी हमें गया। सेम डेटा है। तो आप जो भी अपलोड करते जाओगे वो इमीडिएटली इसमें रेप्लिकेट होता जाएगा। रेप्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। जो भी डेटा हम अपलोड करना चाहते हैं, जो भी हम डेटा सेव करके रखना चाहते हैं, इनकेस डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन सर्विसेज हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उस अपने उस डेटा को सिक्योर करा सकते हैं, राइट? ऐसा। Yes. बट वो हाँ, कितने अगर दिन तक सेव होता सर? वो डेटा नहीं, ये कितने दिन तक परमानेंट रहेगा। हम परमानेंट रहेगा? ओके ओके ये सर। परमानेंट, जब तक आप अपनी तरफ से डिलीट नहीं करते आपका डेटा परमानेंट रहेगा ना। यस यस यस। बट बेसिकली ये इट इज यूज। क्लाउड, हाँ हाँ। ये सभी क्लाउड में है ना सर? मगर तो क्लाउड में कुछ कुछ इतना टाइम का को ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर? नहीं, वो होता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डेटा इतने दिन तक ही रखना है, तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के ऑप्शन से आप इसको अपने आप डिलीट कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कैसे करना है। ओके लाइफ ओके साइकिल मैनेजमेंट कैन हेल्प यू। ये अपने पास डेटा है, स्टोरेज अकाउंट हमने ओपन किया और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का दिखाई पड़ रहा है, राइट? सेलेक्ट द ऑप्शन, ऐड द रूल्स, टाइप द नेम ऑफ योर रूल। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद टेस्ट रूल के नाम से हम बना देते हैं, और ब्लॉब के ऊपर और बेस ब्लॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट कर दो। सेलेक्ट योर डेज, हाउ मेनी डेज? 15 डेज। ठीक है, आफ्टर 15 डेज व्हाट हैपन? योर डेटा विल मूव टू द कूल, टू आर्काइव, टू डिलीट।
अभी हमारे डेटा की कंडीशन क्या है ब्लॉब की, हॉट में है, 15 दिन बाद आप इसको कूल में अपने आप भेज सकते हो, आर्काइव में भेज सकते हो, या डेटा नहीं चाहिए तो ये 15 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक Okay, रूल sir. सेट करना पड़ेगा डेटा को ऑटोमेटिक मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। Okay. Previous ताकि each client, yes, yes. क्या कह रहे हो? We can ask to client previously what type we can store in the data in particular time, or we can ask to client, sir. Previously we can ask to client. After then we can put in the data into particular periods, right, sir? करेक्ट करेक्ट, वी नीड टू कोऑर्डिनेट टू आवर Yes. क्लाइंट एंड उससे हम प्रॉपर डिटेल ले लेंगे कि कितने दिन तक उसको डेटा रखना है हॉट में या कूल में, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर लेंगे। Okay, sir. Okay. ठीक है, so life cycle management can help us to automatic move our data, to automatic change the means tier of our data. We have option to move it into the cool, archive, या फिर इसको हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मीन्स तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now, last topic related to the storage, because as per the content, हमें एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। The one of important topic related to the Azure, it's a Azure file shrink सर्विस। सो Azure फाइल सिंक सर्विस का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज अकाउंट रहेगा ही रहेगा, and in the storage account we need to create a one file share। एक फाइल शेयर हमें बनाना है, और इस फाइल शेयर के केस में हमें क्या करना है, अगला स्टेप, एक सर्विस होती है Azure फाइल सिंक के नाम से। Azure फाइल सिंक शेयर के नाम से एक सर्विस है, और दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर, जो फाइल सर्वर हमने स्टैब्लिश कर रखा है। फाइल सर्वर लोकल में अवेलेबल है ये, विच इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल क्लाइंट, जो कि मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा स्टोर करके रख रहा है। एंड ऑल सिस्टम एबल टू पुट आवर डेटा टू फाइल शेयर। कभी भी डाउनलोड करना हो गया, इंस्टॉल करना हो गया, अपलोड करना हो गया, वो सभी एक्टिविटी फाइल शेयर सर्वर अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। लेकिन व्हाट हैपन, अगर ये फाइल सर्वर डाउन हो गया तो जो क्लाइंट्स है वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगर ये फाइल Yes, सर्वर sir. डाउन हुआ तो डेफिनेटली ये जो डेटा आपने रखे हैं वो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा जो स्टोर किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, इस फाइल शेयर के अंदर जो स्पेस है वो डेटा को कंटेन करने का काम कर रहा है। Yes, right, sir. चलो नेक्स्ट, फाइल सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, ये सिंक्रोनाइजेशन मीडिएटर की तरह होता है जो ऑन प्रोमाइसेस को कोऑर्डिनेट करेगा, और इमीडिएटली साथ ही साथ इसको एजूर फाइल से सिंक्रोनाइज करेगा। मतलब जो ये डेटा आपने अपलोड कर रखा है इसमें क्लाउड ऑन प्रोमाइसेस पे, या जो आप डेटा नया अपलोड करोगे, इसकी पूरी की पूरी इमेज, लाइव इमेज जो है फाइल सिंक्रोनाइजेशन के जरिए आपके एजूर फाइल सर्वर पे स्टैब्लिश होती रहेगी। मींस यहाँ पे उसकी फाइल की इंफॉर्मेशन बनती रहेगी। बेनिफिट इसका ये है कि अगर ये डाउन हुआ तो हम यहाँ से डेटा हमारा प्रोटेक्टेड है, यहाँ से सेफ रखा है, कभी भी हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ फाइल सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, Yes, sir. इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा ऑन प्रोमाइसेस पे विद मैप ड्राइव या फाइल सर्वर, एफटीपी सर्वर या मैप ड्राइव हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा, डाउनलोड एज्योर फाइल सिंक एजेंट। ठीक है, एज्योर फाइल सिंक एजेंट डाउनलोड करके लोकल पे इसको करना पड़ेगा इंस्टॉल।
लोकल पीसी पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे एंड कनेक्ट विद एज्योर फाइल शेयर, जो हमने एज्योर पे फाइल शेयर बना रखा है उस फाइल शेयर से इसको कनेक्ट करा देंगे। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ आवर एज्योर फाइल सिंक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंस्टॉल वन सर्वर ऑन प्रोमाइसेस। ऑन प्रोमाइसेस पे हमें इसको इस पे एक सर्वर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? सर इस पे हम वीएम बना के भी कर सकते हैं ना इस हाँ वीएम बना के भी कर सकते हैं। हमें एक सर्वर चाहिए जो वीएम बना ले या लोकल पे, लेकिन लोकल वाला ज्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में आपको लोकल ही सेटअप करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन गाइस? ठीक है, तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज टॉपिक कंप्लीट किए हैं, क्योंकि फाइल शेयर हम कल करेंगे बिकॉज आई नीड टू इंस्टॉल वन सर्वर ऑन प्रोमाइसेस वर्क स्टेशन पे, ताकि हमें इसका प्रैक्टिकल देख सके लाइव एनवायरनमेंट की तरह। आप एक बार गो थ्रू कर लो जो कंटेंट हमने कंप्लीट किया है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो Azure फाइल सिंक्रोनाइजर वो सर्वर होता है सर, यार वो ये एप्लीकेशन हो रहा नहीं था नहीं नहीं, Azure एज्योर फाइल। फाइल सिंक तो एक टूल है ना। ओह टूल है, ऐसा ऐसा हाँ, अंडरस्टैंड। इट्स अ टूल यू नीड टू इंस्टॉल ऑन प्रोमाइसेस। यस यस अंडरस्टैंड सर, आप उसको ऑन प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल करोगे। इज इट ओके? यस सर। चलो डन करें आज के लिए। ओके सर, सर कुछ डाउट है कल रिक्वेस्ट किया। पूछेंगे सर। अरे हेलो, हाँ सर, हेलो कुछ कह रहे थे? जी सर। करें सर, जो भी आप ये पढ़ा रहे हैं सर, ये कोर्स कंटेंट पर ना, ये सर रियल टाइम में जो है आपको मतलब जो रियल टाइम में जैसे इशू आते हैं उस तरह बताते रहिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रियल टाइम में काम कर रहे हो। तो श्योर श्योर श्योर, प्रोजेक्ट तो भी हम आपके मतलब साथ शेयर करेंगे, नो वरी अबाउट इट। जी जी ट्रबल शूटिंग और प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे तो सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जी सर जी। क्योंकि कोड का जो कोर्स कंटेंट रहता है वो तो अलग रहता है, लेकिन जो रियल टाइम में जो इशू आते हैं और रियल टाइम में जो चलता है हम लोग का, तो हाँ उस हाँ हाँ बेस पर हाँ, हम लोग काम करें और सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इंटरव्यू टाइम नहीं में श्योर अभी। विल ट्राई। यस। अंडरस्टूड। ठीक है गाइस, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं फाइल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ओके सर। ओके ओके सर। एवरीवन, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। वेलकम। बाय सर। बाय बाय।